जैसे आप उस परमेश्वर की स्तुति करते हो, वो शेर जो परमेश्वर के भुजबल को, जो उसकी सामर्थ को दर्शाता है, वो सामर्थ आपके लिए कार्य करने लग जाती है. As you praise him, the lion of tribe of Judah, the lion represents the strength. The strength of God starts to manifest on your behalf. When you praise God, God fights your enemies. जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, परमेश्वर आपके विरोधियों से लड़ाई लड़ता है. भजन संहिता में लिखा है कि जब हम उसकी स्तुतियां करते हैं, परमेश्वर उन राजाओं को, जब वो राजा कह रहा है यानी वो उन प्रधानताओं को कह रहा है, उन दुष्ट आत्माओं को जो आज भी कई लोगों को बंधुए जिन्होंने बनाया है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर उनको सांकलों से बांधने लग जाता है. When you praise God, God starts to bind every principalities with chains. That's why praise is one of the greatest level of warfare. स्तुति करना परमेश्वर की. Many people are trying to fight the devil all the time. We don't fight the devil. We exalt God. We exalt the name that is above every name. हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं. परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जब मूसा हाथ उठाता था परमेश्वर की आराधना में, तो इज़राइल की आर्मी जीतने लग जाती थी. Moses is there on the mountain, and when his hands were lifted up, the Israelites were winning the battle. That means your victory and your lifted hands are connected. आपकी जय और आपके उठे हुए हाथ साथ में जुड़े हुए हैं. जिन बेटे और बेटियों के हाथ अपने पिता के लिए उठे हैं, वो हार नहीं सकते. वो हार नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपकी लड़ाइयां लड़ने लग जाता है. When your hands are lifted up, you cannot be defeated. Hallelujah. Amen. Amen. That's why the devil wants to steal your praises. इसीलिए कभी भी जब आप बुरे समय में होते हो, तो सबसे पहले आपका मन नहीं करता परमेश्वर की आराधना करने का. वो आपके मुंह से स्तुति चुराने की कोशिश करता है. That's why in the Old Testament, where the scripture says, out of the mouth of babes God has ordained strength, Jesus said it, out of the mouth of babes God has ordained praise, because praise equals strength. स्तुति और बल. तो शैतान जानता है कि अगर मुझे इनको हराना है, मुझे इनके से बल लेना पड़ेगा. If I take strength out of them, they'll be weakened. तो वो क्या करता है? आपकी स्तुतियां चुराने की कोशिश करता है. That's why the best time to praise God is when you feel the least to praise Him. इसीलिए सबसे अच्छा समय परमेश्वर की स्तुति करने का वो है जब आपका सबसे कम मन कर रहा है उसकी स्तुति करने का. Amen. So just for next 2 minutes we are going to demonstrate what we are learning. Okay, हम लोग प्रगटीकरण करेंगे. Okay, team, I just want you to just prophesy through your instruments. मैं चाहता हूं आप अपने हाथ खड़ा करके आप भविष्यवाणी करोगे, आप परमेश्वर की स्तुति करोगे. You will lift up your hands and begin to praise God, the praises that comes from your belly. The Bible calls it Tehillah praise. That doesn't mean you sing a song, no song, but whatever the Holy Spirit brings from your spirit man. Come on, are you ready? जो परमेश्वर से जन्मे हैं उनकी कोई हार नहीं. जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं उनके लिए कोई पराजय नहीं है, क्योंकि वचन कहता है वे जयवंत से भी बढ़कर हैं. बोलो, मैं जयवंत से बढ़कर हूं.
ऐसे बोलो जैसे सच में मानते हो, बोलो मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, क्योंकि मैं मसीह से उत्पन्न हुआ हूं। Amen. We are more than overcomers because we are born of God. We are not in a religion called Christianity. हम किसी धर्म में नहीं जिसका नाम ईसाईयत है। We are the sons of God. For as many as received him, to them he gave the right to become the children of God, who are not born of flesh and blood, who are not born of the will of man, but those who are born of God. क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे ना तो मांस से, ना लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, मगर वो पीढ़ी, वो लोग जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, आमेन। You know, the sad thing, the most tragic thing is, Jesus came to set mankind free from the religious system, and we put his teaching in a religious box and we call it Christianity. यीशु मसीह हमें धर्म का जो सिस्टम है, जो धर्म के रीति रिवाज थे, उससे स्वतंत्र करने के लिए आया। और हमने क्या किया? उसकी शिक्षा को वापस एक धर्म में बनाकर और फिर अंदर फंस गए। अरे धर्म से ही तो आजाद करने के लिए वो हमें आया था। वचन कहता है जिसको पुत्र ने आजाद किया है वो सच में आजाद है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हम ईसाई नहीं, हम वो लोग हैं जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया है हर एक धार्मिक बंधन से। आमीन। So हम लोग ये सीरीज कर रहे हैं, we are continuing this series called Sons of God, and it's going to be so much fun today. Amen. तैयार हो आप? बहुत मजा आने वाला है जब आप इस बात को समझ जाओगे। ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। उसके लहू से धुले हुए उस अधिकार में जो हमें दिया गया कि हम बिना डर, बिना भय के, हियाव के साथ आपके सामने आ सकें, क्योंकि हम जानते हैं जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं। जैसा वो एक पुत्र है, जैसा मसीह एक पुत्र है, हम भी पुत्र हैं। और प्रभु हम ये भी जानते हैं तेरे वचन के द्वारा कि अब हम कभी भी ठुकराए नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मसीह में सदा के लिए ग्रहण किया गया है। हालेलुया, आमीन। ओके, सो तैयार हैं आप? ओके, चलते हैं यूहन्ना 5, जॉन 5, विल रीड फ्रॉम वर्सेस 39। मगर इससे पहले अगर आपको याद है हम लोग क्या सीख रहे हैं कि कैसे हमारा जन्म कैसा हुआ। वी आर लर्निंग दैट वी डोंट कॉल गॉड एज फादर एज अ टाइटल। हम परमेश्वर को एक शीर्षक की तरह पिता नहीं बुलाते। हमने उससे जन्म लिया है। ये हमारी क्या है? हमारी हकीकत है। दिस इज अ रियलिटी। वी वर बोर्न फ्रॉम हिम। वी डोंट जस्ट कॉल हिम फादर जस्ट एज अ टाइटल। हम लोग केवल ऐसे ही उसको नहीं बुलाते, बट वी आर बोर्न फ्रॉम हिम। इफ वी आर बोर्न फ्रॉम हिम, ही इज आवर फादर। आमीन। अगर हमने उससे जन्म लिया तो हम क्या हैं? See, the religion is stuck to the message of forgiveness. धर्म कहाँ रुका हुआ है? माफी। We were sinners, we are forgiven, we'll go to heaven. That's not the fullness of gospel. That's the begin. Forgiveness is the door of salvation. Sonship is the full revelation of the gospel. माफी पाना
केवल दरवाजा है जिसके द्वारा आप प्रवेश करते हो परमेश्वर के राज्य में। मगर हम पापी थे, हमारे पाप क्षमा हो गए और अब हम स्वर्ग जाएंगे। अगर केवल इतना सुसमाचार समझा है तो अभी आप एलिमेंट्री स्कूल में हो, अभी आप प्ले स्कूल में हो किंगडम की। यू आर इन अ elementary school of the kingdom if your understanding is I was a sinner, I got forgiven, and now I'm going to heaven. So today I will teach on the level, on the full manifestation of sonship, on the levels of sonship. आज हम बात करेंगे कैसे जो पुत्रत्व है, जो पुत्र होना है, उसके कैसे अलग अलग लेवल हैं और कैसे हम लोग वहां तक बढ़ सकते हैं।